presented by MCKV Institute of Engineering. We know that our today's topic is Guide to Adolescent Psychology and Education. Before that, I just introduce myself. I am Opala Chatterjee, registered psychologist from RCI and also counseling psychologist of MCKV, practicing last 18 years. Presently, I am pursuing my PhD on mental health. I got training from Ranchi CIP, Antaragram, and Indian Psychoanalytic Society. As we know that our today's topic is adolescence. So first we have to understand what is adolescence period. Adolescence is a period of transition between childhood and adulthood. Actually, it is a change. Just think, when our weather is changing, that time we are suffering from cough and cold and different problems. और ऐसा भी होता है कभी कभी अगर आप दूसरा कहीं एक फ्लैट से दूसरा फ्लैट में शिफ्ट कर रहे हैं, दैट टाइम भी आप देखेंगे कि सब कुछ सामान डिसऑर्गेनाइज्ड है, सब इधर उधर हुआ है. क्यों ना? हम लोग चेंज कर रहे हैं, एक घर से दूसरा घर चेंज कर रहे हैं. नाउ थिंक अबाउट दैट चाइल्ड जिसका फिजिकल, इमोशनल एंड सोशल ये सब कुछ में चेंजेस आ रहे हैं, तो ऑब्वियसली he is feeling stressed. That's why adolescence is a period of stress and storm. So first, I am giving some answers of few queries regarding adolescence problem. First question, Serge Leonis asked, is most of the adolescence problem connected on which paradigm, the biological, psychological or social? So the answer is adolescents lack mature capacity for self-regulation because the brain system that influences pleasure seeking and emotional reactivity develops more rapidly than the brain system that supports the self-control. क्या होता है ना, इस adolescence period में हम लोगों का brain का दो पार्ट है. जो इस सिस्टम में, एक सिस्टम में क्या होता है ना, प्लेजर एक्टिविटी, जो कुछ फन, हैप्पी मोमेंट, मजा, ये सब कुछ हम लोगों को अच्छा लगता है. और एक पार्ट है जो हम लोगों को सेल्फ कंट्रोल करते हैं. तो ये जो एडोलेसेंस पीरियड है, जिस टाइम क्या होता है ना, ये जो प्लेजर सीकिंग जो पार्ट है वो बहुत ज्यादा रैपिडली डेवलप करता है. पैरेलली जो सेल्फ कंट्रोल का पार्ट है ना, वो उतना जल्दी डेवलप नहीं करता है. तो इसके लिए क्या होता है ना, बच्चे के अंदर हर टाइम वो प्लेजर सीकिंग एक्टिविटीज चलता है, मतलब किसमें मुझे मजा आए. तो ऑब्वियसली क्या होता है ना, तो इस क्वेश्चन के हिसाब से तो बायोलॉजिकल प्रोसेस स्टार्ट्स फर्स्ट. अब डिपेंड कर रहा है कि उस प्लेजर को आप किस हिसाब से रखेंगे. ऐसा भी हो सकता है कि आप एक चॉकलेट दे के उस प्लेजर को फुलफिल कर दिया. ऐसा भी हो सकता है कि आप 40,000 का मोबाइल दे के उस प्लेजर को. बच्चे को कैसे आप हैबिचुएट करेंगे उसके ऊपर. Yes, sir. Who is controlling the host board? Sir, I am controlling the host. This is Kapil. Okay, okay. तो क्या वो बीच में बंद क्यों हो गया? ऑल ऑफ कपिल लग रहा है उनका साइड से कुछ प्रॉब्लम होगा, क्योंकि द सिस्टम इज रनिंग वेल हियर. I am trying to call ma'am, sir, but she has disconnected. Maybe some problem has arisen.
Yes, she is back. Hello, ma'am, your audio is muted, ma'am. Unmute your audio. Now it's okay. Yes, Yeah, this yes, is we can fine. hear you now. Please continue. Shall I start from the beginning or? You No, please ma'am, carry you on. can continue from where. Oh, okay. So, what we are saying that adolescence is a period when we feel health risk, challenging situation with the authority figure, and peer pressure, sibling pressure. So, peer pressure and peer acceptance and peer rejection is the most important thing in this period. Dr. Devash Bhattacharya asked this question that adolescents often deny social norms. Why? Because peer pressure is one of the important cause. क्या चाहते हैं हम लोग कि इस टाइम सबको खुश करना है, मतलब स्पेसिफिकली दोस्त को, अगर दोस्त लोग खुश नहीं हुए तो हम उस पीयर ग्रुप में नहीं रहेंगे. अगर हम पीयर ग्रुप में नहीं रहेंगे तो दोस्तों से एक रिजेक्शन आएगा. एंड दिस इज द टाइम जब पेरेंट्स से ज्यादा मुझे दोस्तों के साथ रहना पसंद है. सो इसके लिए कभी कभी इस पीरियड में बच्चे ऐसा भी कुछ काम करते हैं दैट इज वायलेटिंग द सोशल नॉर्म. ऐसा सिचुएशन होता है. रिस्क टेकिंग इस उम्र में सबसे ज्यादा होता है. ओनली टू गेट कॉन्फिडेंस, टू परस्यू ऑटोनॉमी and to develop an identity and also to get affiliation from the peers. So I think Dr. Devashish Bhattacharya, if you are there, then you can understand why this time adolescents often deny this social norm. Another question from Amita Vajana, that why adolescence period is important in human life. You can say this is the passport of life. इधर से शुरू होता है कि आप कौन सा डायरेक्शन में जाओगे, मतलब जिसका प्रॉपर एक्सेप्टेंस, फैमिली कोऑपरेशन सब कुछ सही तरीके से होता है, उसका डेवलपमेंट प्रॉपरली आगे भी जाके हम लोग देखेंगे उसके अंदर एक प्रॉपर ह्यूमन बीइंग का सारा क्वालिटीज आ सकता है. लेकिन अभी अगर डिप्रेशन, फ्रस्ट्रेशन, उसके साथ डिफरेंट अब्यूज लाइक ड्रग्स, हुक्का, ये सब कुछ अगर इसके साथ रिलेट हो गया, बच्चे के अंदर डिप्रेशन चले आए, तो दिस पीरियड से उसका फ्यूचर में इफेक्ट हो सकता है. दैट्स व्हाई इट इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पीरियड, क्योंकि बाद में हम लोगों के अंदर कंट्रोल, कौन सा चीज अच्छा है, कौन सा चीज बुरा है, अगर हम कुछ गलत भी कर रहे हैं तो वेयर टू स्टॉप, दैट आई नो. बट प्रेजेंटली इन द एडोलेसेंस पीरियड आई हैव नो सेंस अबाउट दैट. अनदर क्वेश्चन, एडोलेसेंस के बारे में जो जो क्वेश्चन है पहले हम वो कंप्लीट करेंगे, उसके बाद कोविड-19 में आएंगे. अनदर क्वेश्चन आस्क्ड बाय आलोकिता विशाल, हाउ कैन make aware to adolescent girls for love life attraction and when she get involved in a relationship and someone misusing her emotion. Very common question in adolescence period. Adolescence period means attraction of opposite sex. This is a normal thing. Parents के लिए particularly हम बोलेंगे कि क्या होता है ना, जब भी हम लोगों को ऐसा कुछ मैसेज आता है तो we just become afraid कि वो अभी क्या कर लेगा, अगर कुछ हो गया तो पढ़ाई पे पूरा असर हो जाएगा.
and that time we start to stop. Don't do this, don't do that, contact मत करो, मोबाइल ले लिया, बहुत वायलेंट हो गया घर में. और उसमें क्या अल्टीमेटली रिजल्ट होता है? अल्टीमेटली रिजल्ट होता है कि वो उसके अंदर और भी ज्यादा डिप्रेशन और की ज्यादा डिटर्मिनेशन एडमेंट हो जाता है कि हम इस रिलेशनशिप को कंटिन्यू करेंगे. द फर्स्ट थिंग व्हाट यू हैव टू डू, ये जो स्ट्रेस चलता है ना, इसको रिड्यूस कीजिए. एज ए पेरेंट्स यू हैव टू बी कम एंड क्वाइट, क्योंकि अभी वो ऐसा कोई भी डिसीजन नहीं लिया है. हो सकता है कि सिर्फ एक रिलेशन में वो है. इट मे बी इन्फैचुएशन, बिकॉज लव रिलेशनशिप उसके लिए है, लेकिन उसको समझने के लिए जो अंदर से डिटर्मिनेशन, जो अंदर में जो फीलिंग चाहिए, जो रिस्पॉन्सिबिलिटी चाहिए, वो अभी उसके दिमाग में नहीं है. इस इन्फैचुएशन को वो लाइकिंग बोलो, इन्फैचुएशन बोलो, उसको ही वो समझ रहे हैं कि दिस इज अ लव रिलेशनशिप. गिव हिम और हर टाइम कि ठीक है, अभी अगर कोई रिलेशन में हो, तुम बात करो, फ्रेंडशिप करो, देयर इज नो प्रॉब्लम, बट डोंट टेक एनी पर्टिकुलर डिसीजन. अगर तुम बड़े होके खुद पे पैर में खड़ा हो जाओ, दैट टाइम यू कैन टेक द डिसीजन. इसमें क्या होगा, उसको भी टाइम मिल जाएगा. नंबर 2, उसको नहीं लगेगा कि मम्मी पापा मेरे इस रिलेशन के अगेंस्ट में है. और अभी क्या होता है ना, इतना ज्यादा ब्रेकअप होता है रिलेशन में, उसको देखिए कि 2-4 दिन बाद ऐसा भी हो सकता है कि दूसरा रिलेशनशिप में वो आ गया, इस रिलेशनशिप का ब्रेकअप हो गया. लेकिन इसके बीच में अगर आपने टेंशन क्रिएट कर दिया तो घर में उसका पढ़ाई भी बंद, सब कुछ बंद. सो जस्ट ट्राई टू फिक्स इट. इसमें अगर स्ट्रेस हम लोग भी देंगे तो सिचुएशन कभी कभी हमसे भी ज्यादा हो जाता है, हमसे हमारा हाथ से भी आगे चला जाता है. Another question, Lady Anti Unico, in what extent can a teacher interfere with having psychological distress? Psychological distress, इसमें क्या होता है ना, बच्चे के अंदर बहुत ज्यादा डिप्रेशन आ जाता है. तो साइकोलॉजिकल डिस्ट्रेस में एज ए टीचर आप कैसे हेल्प करोगे? फर्स्ट थिंग, टीचर सबसे बड़ा काउंसलर है बच्चे का. अगर वो चाहे तो, आई एम शोइंग यू द नेक्स्ट स्लाइड. नेक्स्ट स्लाइड. टीचर सबसे ज्यादा बच्चे का दोस्त होता है अगर वो चाहे तो. अगर आपने देखा कि ये स्टूडेंट बहुत ज्यादा डिस्ट्रेस में है, तो सबसे पहले आपको एम्पैथेटिकली उसको हैंडल करना पड़ेगा. आई मीन एम्पैथी इज समथिंग डिफरेंट फ्रॉम सिंपैथी. उसको दुख देख के हम भी रो रहे हैं, दैट इज कॉल्ड सिंपैथी. लेकिन अगर वो एम्पैथी हुआ तो उसके सिचुएशन में खुद को खड़ा करके हम सोचेंगे कि अगर ये मेरा सिचुएशन होता तो हम क्या करते. दैट इज कॉल्ड एम्पैथी. तो जब टीचर कोई स्टूडेंट ऐसा मिल रहा है who is in psychological distress, that time you have to think from their perception, not from your perception. And what you have to do, teach him or her problem solving skills. Teach the students how to set goals and self motivation. Sometimes you have to develop or you have to modify your response according to students fluctuation of mood. अगर वो डिस्ट्रेस में है, यू कैन अंडरस्टैंड कि कभी कभी इसका मूड स्विंग होगा. देयर मे बी सम साइड इफेक्ट फॉर एबिलिटी टू, देयर मे बी सम साइड इफेक्ट फॉर मेडिकेशन, अगर वो मेडिसिन ले रहे हैं. देयर मे बी सम प्रॉब्लम टू कंसंट्रेट. यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट एंड अकॉर्डिंग टू दैट यू हैव टू गिव योर सजेशन. उसका सिचुएशन को समझिए. ऐसा नहीं कि वो आज होमवर्क करके नहीं आया, दैट मीन्स
I'm not tolerating that. If I know that he is in distress, then I will genuinely help him. Frequently monitor karna. Frequently monitor whether the student has suicidal thought or not. Because this is the age, that time suicidal tendency is also high. Now, next question from Ashutosh Pal. How to utilize the time properly in the lockdown period? Okay, when we are talking about the lockdown period, we will give you the detailed schedule that how to maintain this time. But in case of time management, three things you have to know, that you have to plan something, you have to plan a timetable, you have to think about the priority. कौन सा चीज में हम कितना time slot रखेंगे, that depends on my priority. अब सोच लीजिए कि क्या priority है और कौन कौन सा चीज में मेरा एफिशिएंसी है, जिस चीज में जो मेरा पॉजिटिव साइड है उसको और भी एनहांस करना बहुत ज्यादा जरूरी है. Now we come to our present situation. We all know during this lockdown period, mental health problem for many children is increasing day by day. And this is characterized by total detachment from daily timetable, digital addiction, and a feeling of extreme restlessness. Though online classes and videos of different activities have been started by different schools, but due to lack of motivation, children are finding it difficult to keep abreast with these classes. One question from Ashutosh Pal. How to utilize this time properly in this lockdown period? I will show the first thing what we have to do. Social distancing should not mean social isolation. So, बच्चे के अंदर सबसे पहले ना ये चीज आपको देना पड़ेगा कि भाई तुम फ्रेंड्स के साथ दूर में हो, इसका मतलब ये नहीं कि तुम कहीं ना कहीं उसके साथ मेंटली डिटैच्ड हो, ऐसा नहीं. जस्ट फिजिकली हम लोग डिस्टेंट हुए हैं, इट्स डजंट मीन इमोशनल डिस्टेंस तैयार हुआ है. So first you have to make them understand that. Next, understand their frustration over not seeing friends. उसके अंदर फ्रस्ट्रेशन तैयार हो रहे हैं, कौन सा सिचुएशन में वो कैसा बिहेव कर रहे हैं, ज्यादा डिप्रेस्ड है, ज्यादा हैप्पी है. कोई कोई होता है कि इतना बोर्ड हो गया है कि सारा दिन सो रहे हैं, स्लीपी टायर्ड, ये ना क्या करे उसको समझ में नहीं आ रहा है. तो गिव देम एक्टिविटीज. सिर्फ पढ़ाई से तो काम नहीं चलेगा, आपको डिफरेंट एक्टिविटीज भी देना पड़ेगा. तो ये एक्टिविटीज हम लोग कैसे सेटअप करेंगे? क्रिएट अ सेफ फिजिकल एंड इमोशनल एनवायरनमेंट बाय प्रैक्टिसिंग द 3 R's. 3 R's means reassurance, routines and regulations. उसको reassure कीजिए, whatever the situation, उसको reassure कीजिए. उसके साथ एक टाइम टेबल उसको बना दीजिए. टाइम टेबल मतलब ऐसा नहीं कि सिर्फ पढ़ाई का होगा, सब कुछ उसमें रहेगा. अगर वो चाहे तो टीवी भी देख रहे हैं, अगर वो चाहे भी थोड़ा घर में बोर्ड गेम भी खेल रहे हैं, सब कुछ करने का एक टाइम शेड्यूल उसको बना दीजिए. ये बहुत जरूरी है. तो ये जो रीअश्योरेंस और रूटीन की बात हम बोल रहे हैं, ये आपको मेंटेन करना पड़ेगा. इसके बाद देखिए ये चीज रेगुलेट हो रहा है या नहीं हो रहा है, वो भी आपको देखना पड़ेगा. अच्छा, एक मिनट हम देख लें स्क्रीन. आई थिंक ऑल ऑफ यू सी दिस PowerPoint. Just 1 minute. Yes.
ম্যাম আপনার স্ক্রিনটা আরেকবার শেয়ার করুন প্লিজ। হ্যাঁ, স্ক্রিনটা আমি শেয়ার করছি। Yes. Yes, now fine. Now it's fine. Yes, yes, absolutely. Please go on, ma'am. Carry on, ma'am. तो जो reassurance, routines and regulations, अब आपको रेगुलेट भी करना है, लेकिन इस चीज में एक चीज हम पेरेंट्स के साथ बात करके देख रहे हैं। बहुत सारा पेरेंट्स हम लोगों को बोल रहे हैं मैम आप तो बोल रहे हैं टाइम टेबल बनाने के लिए, लेकिन वो फॉलो नहीं करता है। दिस इज देयर कंप्लेंट। नाउ फर्स्ट थिंग, आपके घर में कोई टाइम टेबल है जो सब लोग मेंटेन कर रहे हैं? अगर वो नहीं है तो डोंट एक्सपेक्ट कि बच्चा भी वो करे। डोंट एक्सपेक्ट दैट। मतलब मम्मी सुबह में शायद 7 बजे उठ रहे हैं क्योंकि अभी ब्रेकफास्ट बनाना है और अभी डेली का रूटीन है, बहुत कुछ काम है, लेकिन हो सकता है कि पापा 9 या 10 बजे उठे क्योंकि उसने लेट नाइट तक एक मूवी देखा है। तो इफ दिस इज द सिनेरियो, सो वी कांट एक्सपेक्ट कि बच्चे सही टाइम पे रूटीन उसको फॉलो करेगा। तो वॉट एवर द टाइम टेबल, हो सकता है कि आपने थोड़ा भी शिफ्ट भी किया, लेकिन वॉट एवर द टाइम टेबल वो सबके लिए एक टाइप का कीजिए। अगर सुबह उठ रहे हैं तो सभी उस टाइम में उठ रहे हैं, एक साथ अगर ब्रेकफास्ट ले रहे हैं तो सभी उस टाइम में ब्रेकफास्ट ले रहे हैं, उस हिसाब से आपको इस करना पड़ेगा। Apala ma'am, I'm pitching in money. There is a request. Timetable can be made according to a consent of each and every member of the family. Obviously sir, सबको बैठ And के each and everyone agree to that timetable, and according to that timetable should be followed and maintained by from top to bottom. बच्चे से लेकर Exactly, sir. बापू तक या बच्चे से लेकर दादू तक, मतलब जो भी Exactly, sir. उसमें, तो तभी वो टाइम टेबल मेंटेन हो पाएगी। सिर्फ बच्चे करेंगे और पापा मम्मी नहीं करेंगे, काम नहीं चलेगा। उसमें सर नहीं होगा। दैट्स व्हाई आई एम टेलिंग, क्योंकि बहुत सारा पेरेंट्स वैसे ही बोल रहे हैं मैम आप तो टाइम टेबल दे रहे हैं लेकिन टाइम टेबल बच्चे फॉलो नहीं कर रहे हैं। अगर घर में कोई नहीं फॉलो कर रहा है तो हाउ कैन वी एक्सपेक्ट कि बच्चे से फॉलो करेगा? इट्स यानी वो नॉट तो पॉसिबल। ज्ञान सिर्फ देने के लिए नहीं होता, ज्ञान तो अमल करने के लिए भी होता है ना। एग्जैक्टली सर, एग्जैक्टली सर। राइट। तो दिस यू हैव टू डू फर्स्ट। तो आप देखिए कि आप टाइम टेबल फॉलो कर रहे हैं। और हाँ, टाइम टेबल ऐसा नहीं कि सिर्फ अगर आप वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं उस टाइम बच्चे के भी स्कूल चल रहा है, एवरीथिंग इज फाइन, लेकिन अभी टाइम है जिस टाइम आप क्वालिटी टाइम भी शेयर कर सकते हैं। क्वालिटी टाइम बोलने से मुझे एक बात आया, अभी हम एक बच्चे का लव रिलेशनशिप को लेकर एक क्वेश्चन अभी पढ़े, तो दिस इज द टाइम जब आप बच्चे के साथ एडोलेसेंस एज में जो सेक्स एजुकेशन देना होता है उस हिसाब से भी बात कर सकते हैं। दिस इज द टाइम आप यूटिलाइज कर सकते हैं। बहुत कुछ चीज हम लोग बोलते हैं बच्चे के साथ बात कब करें मैम, उसका तो ये सब बात कैसे करेंगे, आप इधर से शुरू कीजिए। आप इधर से शुरू कीजिए, बच्चे के साथ पहला शुरू कीजिए। आपका क्लास 9, 10, 8, कहाँ से बात शुरू करेंगे? मेरे बचपन से शुरू करना है। मैं जब 8, 9, 10 में थी तब मेरा भी दोस्त था, उस टाइम कोई मुझे बोला था सिगरेट ले, उस टाइम में हम कैसे किया था, अगर गलत भी किया था तो क्या नतीजा बाद में हुआ, ये सारा चीज अभी टाइम है, बच्चे के साथ शेयर कीजिए। एंड कम टू देयर स्टोरी ऑल्सो, उसका स्टोरी भी सुनिए, हो सकता है वो भी कोई प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं। तो ये सारा जो क्वालिटी टाइम हम लोग दौड़ भाग के रोज के जिंदगी में नहीं दे पाते हैं, दिस इज द टाइम जब आप दे सकते हैं। उसका छोटा छोटा इमोशनल जो अप्स एंड डाउन्स होता है ना, और ये बच्चे लोगों का जो इमोशंस होता है, हो सकता है कि आपके लिए बड़ा कुछ नहीं है, वो जो हम बोले एम्पैथेटिकली सोचिए, आपके लिए शायद ये बड़ा चीज नहीं होगा कि ये हुआ है ऐसा कर लो, नहीं, उसके हिसाब से सोचिए। उसके हिसाब से जब सोचेंगे तब आपको समझ में आएगा कि उसको कहाँ क्राइसिस लग रहा है, तब आप उस हिसाब से उसको गाइडलाइंस दे सकते हैं। नेक्स्ट, जब ये टाइम शेड्यूल बनेगा तो एनकरेज दोज हेल्दी हैबिट्स। अभी सभी जगह में आप व्हाट्सएप में बोलिए, फेसबुक में बोलिए, हेल्दी हैबिट्स मतलब सैनिटाइजिंग कैसे करना है, कैसे मास्क यूज करना है, कितना बार हाथ धोना है, सब कुछ बार बार दे रहे हैं। तो उससे ऐसा एक तैयार करना है जो चीज कुछ ज्यादा भी नहीं
क्योंकि कभी कभी हम लोग एंजाइटी में कुछ ज्यादा भी कर लेते हैं। वो चीज में भी हम बाद में आ रहे हैं कि कौन सा टेंशन इस टाइम में नॉर्मल है और कौन सा टेंशन इस टाइम में एबनॉर्मल है। क्योंकि थोड़ा बहुत टेंशन देखिए इट्स नॉर्मल, सबके लिए नॉर्मल, क्योंकि हम लोग जो जिस क्राइसिस पीरियड में जा रहे हैं हम लोग जानते हैं कि प्रॉब्लम हो रहा है। लेकिन वो छोड़ के भी और भी कुछ ज्यादा प्रॉब्लम, हम फोकस नहीं कर रहे हैं, शिविर कर रहे हैं, सारा दिन में हाथ धोना कुछ इतना ज्यादा हो गया जो ऑब्सेशन में खड़े हो गया है, जो भी चीज टच कर रहा है लग रहा है कि हाँ अभी इन्फेक्शन आ जाएगा, तब कुछ एबनॉर्मल हो रहा है। तो आपको सबसे पहले ना उसमें एक बाउंड्री भी क्रिएट करना पड़ेगा, कौन सा चीज नॉर्मल है और कौन सा चीज एबनॉर्मल है। अब देखिए एक क्वेश्चन मुझे मिला है कि Uddipana Bhattacharya, among our insecurities, how to be strong in the mind and as in the body. Another question, what are the ways of counseling of the students who are facing fears and emotional lackness? बच्चे के अंदर इनसिक्योरिटी हो रहा है, अगर हम लोग भी पैनिक करेंगे तो ऑब्वियसली वो बच्चे में भी चैनलाइज्ड होगा। बच्चे के अंदर इनसिक्योरिटीज हो रहा है। कभी कभी कोई कोई फोन ऐसा भी आ रहा है जहां बच्चे पूरा सिचुएशन देख के बहुत डिप्रेस्ड भी हो रहा है, लग रहा है कि इस प्रॉब्लम का कोई सलूशन नहीं है। तो उस टाइम सबसे पहले आपको पॉजिटिव होना पड़ेगा और स्टे अवे फ्रॉम सोशल मीडिया एंड ऑल दोज लिटिल माइन्यूट न्यूज जो व्हाट्सएप में आता है ना सारा दिन, ये ज्यादा पढ़ के हम लोग और भी ज्यादा टेंस्ड हो रहे हैं। सारा दिन में अब चाहे तो 2 बार फिक्स कीजिए कि ये टाइम में हम न्यूज सुनेंगे, और वो भी कहाँ से, जो हु से दे रहे हैं या हम लोग का गवर्नमेंट का जो साइट है उधर से हम लोग को मिल रहा है, कोई ऑथेंटिक साइट से वो आप देख लीजिए। इट्स नॉट लाइक दैट कि मीडिया, सोशल मीडिया में जो मैसेज आ रहा है उसके ऊपर हम भरोसा करें, क्योंकि उसके ऊपर भरोसा करने से क्या होगा, आपका पैनिक और भी बढ़ेगा। और ज्यादा सारा दिन में न्यूज देख रहे हैं, ऐसा सिचुएशन ना हो। मेक इट अ प्रायोरिटी टू स्टे टच विथ योर फ्रेंड्स एंड फैमिलीज, एंड व्हाट यू हैव टू रिमेंबर दैट टाइम, डोंट लेट कोरोना वायरस डोमिनेट एवरी कन्वर्सेशन। क्या होता है ना, हम लोग जब दोस्तों के साथ बात भी कर रहे हैं तभी कोरोना वायरस लेकर ही बात कर रहे हैं, देयर इज नो अदर टॉपिक। ऐसा भी तो हो सकता है कि आप कल एक अच्छा सा मूवी देखा, उसका स्टोरी के बारे में बात कर रहे हैं। ऐसा भी हो सकता है कल बच्चे के साथ बहुत अच्छा टाइम स्पेंड किया, उसका कुछ बता रहे हैं। कोई नया डिश बनाया, उसका भी कुछ रेसिपी शेयर कर रहे हैं। लेकिन व्हाट वी आर डूइंग, वी आर ऑलवेज टॉकिंग रिलेटेड टू दैट पर्टिकुलर टॉपिक व्हिच इज क्रिएटिंग स्ट्रेस एंड टेंशन इनसाइड अस। तो ये चीज भी हम लोगों को दिमाग में रखना पड़ेगा। और क्या ना, फोकस ऑन दैट थिंग्स दैट यू कैन कंट्रोल। जो चीज मेरे हाथ पे नहीं है उस चीज को लेकर सोचने से कोई फायदा नहीं है। वी कैन कंट्रोल के ये जो स्प्रेड हो रहा है, और इस टाइम ना हम लोग सोचते हैं कि दूसरे क्या क्या करते हैं, वो तो ऐसा आया, वो तो ऐसे इस चीज को छू लिया, उसने ऐसा किया। हम लोग इस बारे में ज्यादा सोच रहे हैं। नो, थिंक अबाउट योरसेल्फ। हमको क्या क्या करना था, हम क्या क्या किए हैं, हमको और क्या क्या करना चाहिए। दूसरे को मेरे कंट्रोल, दूसरे का कुछ काम मेरे कंट्रोल में नहीं है, लेकिन मेरा काम मेरे हाथ में है, तो मैं इसमें कुछ एटलीस्ट कुछ मॉडिफिकेशन कर सकता हूँ। So ma'am, I would like to interrupt for a second, Yes. ma'am. I would like to you to know that we have good amount of time in our hand. You can continue. Okay. Yes, the session has been extended. Please continue, ma'am. Extended. Okay, ma'am. How long can you please mention? 30 more minutes. 30 more minutes. Okay. Thank you, ma'am. Thank you. Thank you. तो ये बात हम लोगों को भी समझना पड़ेगा कि हम लोगों को उस चीज में फोकस करना पड़ेगा कि
जो हम लोग के हाथ पे है, जो हम लोग के हाथ में नहीं है, बेकार उस चीज को सोच के आपका टेंशन एंजाइटी बढ़ा रहे। सो डोंट थिंक अबाउट दैट और डू सम एक्टिविटीज जिसमें आपको उस चीज का वो करुणा लेके रिमाइंडर बार बार ना आए। मतलब क्या होता है, ऐसा कुछ एक्टिविटी भी होता है जिसमें कोई मेंटल इन्वॉल्वमेंट नहीं रहता, और ऐसा कुछ एक्टिविटी होता है जिसमें हम पूरा इन्वॉल्व है। So you have to think about those activities where you are mentally involved. Suppose we are just discussing a topic, focusing on, so you have no scope to think any other thing right now. हम अभी जो अगर इस डिस्कशन में फोकस कर रहे हैं तो हम चाहे भी तो दूसरा कुछ सोच नहीं सकते। लेकिन आप सोचिए कि चुपचाप बैठे हुए हैं, किचन में काम कर रहे हैं लेकिन चुपचाप काम कर रहे हैं। At that time, all these fears come inside your mind. अगर किचन में काम कर रहे हैं ना, साइड में एक गाना चला दीजिए या किसी के साथ बात कीजिए, तो क्या होगा, आपका माइंड डाइवर्ट रहेगा। और अदर देन आपको माइंडफुलनेस प्रैक्टिस करना पड़ेगा, जो हम लास्ट में आएंगे कि माइंडफुलनेस अगर हम लोग प्रैक्टिस करेंगे तो ये चीज हम लोगों को और भी अच्छा होगा। और एक क्वेश्चन हमारे हैं, just a minute, another question, Partho Ganguly, adolescents children are generally suffer from attention deficit. How to improve their concentration? Obviously, adolescents children are generally suffer from attention deficit. और क्यों attention deficit में वो लोग जाते हैं, हम बोले हैं कि जैसे कि ये स्ट्रेस, ये सब कुछ उसके अंदर रेस्टलेसनेस तैयार कर रहा है। अब हाउ टू कंसेंट्रेट, हाउ टू इम्प्रूव देयर कंसेंट्रेशन। सबसे पहले अगर उसका कंसेंट्रेशन आपको सही करना है तो ऐसा कोई काम दीजिए जिसमें वो फोकस कर सके, मतलब उसका इंटरेस्ट लेवल जो है उसमें वो फोकस कर सके, और उसका जो स्ट्रेस है उस स्ट्रेस को हम लोगों को कम करना है। तो हम लोग कैसे बात कर सकते हैं, उसके अंदर जो डिसअपॉइंटमेंट है उसको पहले हटाना है। तो उसके लिए कुछ बात ऐसा कर सकते हैं कि तुम्हारा कुछ खराब लग रहा है, कोई चीज ऐसा है जिसमें तुम हर्ट हुए हो, कैन आई हेल्प यू, ऐसे कोई बात करके। कभी कभी ऐसा भी होता है माथा में एक छोटा सा आप हाथ भी रख देना तो उसके लिए वो भी बहुत कुछ होता है। एक थोड़ा हग भी कर लिया बच्चे के साथ तो वो भी उसके लिए बहुत कुछ होता है। बहुत दिन हम लोग नहीं किए हैं, ऐसा भी सिचुएशन कभी कभी आ जाता है कि रोज का दौड़ भाग में हम लोग बहुत दिन बच्चे को थोड़ा पास में भी नहीं लिया, हर टाइम देख रहे हैं तो पढ़ाई ट्यूशन ये सब कुछ ही बोल रहे हैं। तो ये सब भी जरूरी है। और उसके साथ क्या जरूरी है ना, कंसंट्रेट करना है तो चलो दोनों एक साथ बैठो माइंडफुलनेस के लिए। माइंडफुलनेस मतलब ऐसा नहीं कि हर टाइम आपको मेडिटेशन करना पड़ेगा। माइंडफुलनेस मतलब है कोई भी चीज में आप उसको फोकस करना सिखाइए। अगर खाना भी खा रहे हैं ना तो आपको देखना पड़ेगा कि उस खाने में फोकस्ड है या खाना खाते खाते टीवी भी देख रहे हैं, खाना का टेस्ट भी पूरा नहीं मिल रहा है, टीवी भी सही से नहीं देख रहा है, दोनों एक साथ चल रहा है। माइंडफुलनेस मतलब अब खाना भी खा रहे हैं, पूरा टेस्ट को फील कीजिए। अगर आप ड्राइंग भी कर रहे हैं तो पूरा ड्राइंग को फील कीजिए। म्यूजिक भी सुन रहे हैं तो म्यूजिक पूरा सुनिए। मतलब जो जिस मोमेंट में जो चीज हम लोग कर रहे हैं, ट्राई टू फोकस ऑन दैट। जो जब रेस्टलेस है आप उसके साथ बैठिए। अगर ड्राइंग कर रहे हैं तो उसके साथ ड्राइंग करने के लिए आप खुद भी बैठिए, खुद कलर भी कीजिए। अगर गेम भी खेल रहे हैं तो दोनों साथ में गेम खेलिए। एक साथ दोनों गेम खेलेंगे तो हो सकता है कि तब उसका पूरा फोकस गेम में ही है, लेकिन गेम के टाइम में जो फोकस होता है वो बाकी टाइम में नहीं होता है। ये बहुत सारे का क्वेश्चन है। हम शुरुआत में बोले हैं कि बच्चे का प्लेजर सीकिंग बहुत ज्यादा होता है इस टाइम में देन सेल्फ कंट्रोल। तो ऑब्वियसली गेम में उसको मजा आएगा, लेकिन गेम के जैसा अगर हम सब्जेक्ट या और भी कोई चीज को बना रहे, अगर एक्सरसाइज करने में, नॉर्मल योगा करने में बहुत बोर लग रहा है
तो आप कुछ जुम्बा डांस चला के उसको बोलिए ना थोड़ा डांस करने के लिए, उसमें भी तो एक्सरसाइज होगा उसको। आपको पैरेलल कुछ देना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि एक बहुत एनर्जेटिक कुछ चीज जिसमें बच्चा बहुत एनर्जी फील करते हैं, उसके अगेंस्ट में आपने जो टास्क दिया वो बहुत लो मूड का है, तो उसमें उसका इंटरेस्ट नहीं आएगा। आपको उसका पैरेलल कुछ एक्टिविटीज उसको सजेस्ट करना पड़ेगा जिसमें उसको अच्छा लगे। तो इसके लिए प्रैक्टिस माइंडफुलनेस इज वेरी मच इम्पोर्टेंट। हाँ, दिन में एक चीज आप ऑब्वियसली मेडिटेशन आप अगर कर सकते हैं वो तो बहुत ही अच्छा है। सारा दिन में 10 मिनट कोशिश कीजिए सब एक साथ बैठ के मेडिटेट करें। कोई हल्का सा म्यूजिक चला दीजिए, एनवायरनमेंट ऐसा क्रिएट कीजिए जहां फीलिंग हो एक मेडिटेशन का एनवायरनमेंट का, क्योंकि एक लाइट म्यूजिक चल रहा है, थोड़ा लाइट स्विच ऑफ कर दीजिए, घर थोड़ा सा अंधेरा रहेगा, एकदम अंधेरा डार्क नहीं लेकिन थोड़ा सा अंधेरा रहेगा। उस टाइम डीप ब्रीथ एक्सरसाइज करना, शुरू में सिर्फ ब्रीदिंग पर फोकस करना जो बहुत ज्यादा जरूरी है। तो ये डीप ब्रीथ एक्सरसाइज करने से क्या होगा ना, धीरे धीरे बच्चे शुरू में ऐसा होगा कि लगेगा कि उसको जोर जबरदस्ती करा रहे हैं, लेकिन एटलीस्ट 21 डेज अगर वो रेगुलरली एक फिक्स टाइम में करेंगे ना तो धीरे धीरे उसका आदत हो जाएगा। और एक चीज याद रखना पड़ेगा कि जब हम लोग मेडिटेशन कर रहे हैं तो वो खाने के एटलीस्ट 2 घंटा बाद होना चाहिए। और मेक अ फिक्स टाइम, मतलब आज सुबह 5 बजे किया तो कल 10 बजे किया और परसों शाम में 5 बजे किया, ऐसा नहीं होना चाहिए। You have to make a fixed time when you can do this meditation. This is for meditation time. ऐसा एक टाइम स्लॉट आपको भी करके रखना है। और शुरू में अगर आप वो बच्चे के लिए क्या होता है ना, अगर तुम ओम पे फोकस करो, बच्चा नहीं करते हैं, स्पेसिफिकली इन एडोलेसेंस पीरियड ये लोग इतना इंटरेस्टेड ही नहीं होता है। तो शुरुआत में आप ब्रीदिंग पे फोकस करने के लिए बोलिए, ब्रीदिंग पे फोकस करने से भी बेटर होगा। अगर वो भी नहीं हो रहा है तो एक अच्छा सा स्टोरी दे दीजिए उसके सामने जिसको उसको मेडअप करना है, लेकिन यू हैव टू फोकस ऑन दैट स्टोरी। लाइक अगर हमको गुलाब पसंद है तो हम गुलाब को लेकर ही सोच रहे हैं, रोज का गार्डन है, उधर हम घूम रहे हैं, इस हिसाब से हम सोच रहे हैं, लेकिन आई कैन शिफ्ट फ्रॉम दैट स्टोरी। एटलीस्ट 10 मिनट्स कर सकते हैं। शुरू में इट्स ऑब्वियस, हम जो चीज बार बार सबको बोलते हैं, मैम हमने 2 दिन किया लेकिन मेडिटेट नहीं हो रहा है। डोंट एक्सपेक्ट, आज अगर आपने जिम गया तो ऐसा नहीं होता कि परसों आपने स्पेक्स बना लिया। इट्स नॉट पॉसिबल। तो 2 दिन में जो माइंड 1 मिनट में 31 थॉट्स हम लोगों को माइंड में आता है, 2 दिन में वो एक ही चीज में आ जाएगा। इज इट पॉसिबल? इज इट नॉट पॉसिबल? माइंड में आपका आएगा, डिफरेंट थॉट्स आएगा, आने दीजिए, पास ऑन कीजिए, आने दीजिए, पास ऑन कीजिए। आ रहे हैं, शुरू में खुद को देखिए कि माइंड में कितना थॉट्स आ रहे हैं। आप अगर उसको भी सबसे अच्छे से देखेंगे, अच्छे से नोटिस करेंगे, तो दैट इज ऑल्सो माइंडफुलनेस कि मेरे अंदर एक आज 10 मिनट बैठे था, क्या क्या थॉट्स आया, आने के बाद नोट डाउन कीजिए कि क्या क्या सोचे, इस 10 मिनट में मेरे अंदर क्या क्या सोच आया। दैट इज ऑल्सो माइंडफुलनेस। शुरू में आपको ऐसा ही करना पड़ेगा, फिर धीरे धीरे आप उसको आगे लेकर जा सकते हैं कि धीरे धीरे आप देखेंगे कि ना 31 थॉट से धीरे धीरे वो रिड्यूस होता जाएगा, 21, 20 ऐसे करके रिड्यूस होते होते। हाँ, डोंट एक्सपेक्ट कि हम लोग एक थॉट में आप लेकर आ पाएंगे, क्योंकि इतना अटेंशन हम लोगों को अभी नहीं है। प्रेजेंटली हम लोग को अटेंशन इतना मतलब स्प्रेड हो गया है कि उस लेवल पे फिक्सेशन करने के लिए आपको बहुत मेहनत करना पड़ेगा। बट जितना कम होगा उतना आप अंदर में रिलैक्सेशन आपको मिलेगा। अब आ रहे हैं कि अगर माइंडफुलनेस नहीं हुआ तो सिचुएशन को हम लोग कैसे हैंडल करते हैं। आप लोग इस पिक्चर को देख सकते हैं कि क्या आ रहे हैं। इस एक मिनट, अगर माइंडफुलनेस नहीं है तो क्या होता है ना, हम सिचुएशन को समझते भी नहीं है और
अगर माइंडफुलनेस अंदर है देन वी कैन अंडरस्टैंड द सिचुएशन, क्योंकि सिचुएशन के साथ पूरा हम लोग देख रहे हैं, हम लोग का परसेप्शन इतना ज्यादा हो गया है कि उस चीज को हम लोग देख रहे हैं, देन आवर रिएक्शन विल बी समथिंग डिफरेंट। तो ये बहुत ज्यादा जरूरी है। नेक्स्ट जो है कि बच्चे के अंदर वी फीलिंग तैयार करना है। अभी क्या होता है ना, ये जो अभी लॉकडाउन पीरियड में जो प्रॉब्लम हो रहा है, ये सोशल डिस्टेंसिंग कभी कभी बच्चे को बहुत सेल्फिश भी कर रहे हैं कि किसी के साथ, हाँ ऑब्वियसली हम लोगों को अभी फियर है कि किसके पास ऐसा प्रॉब्लम है किसके पास नहीं है, हम लोग नहीं जानते हैं, लेकिन कभी कभी लोग ऐसा भी बिहेव कर रहा है विच इज जस्ट लाइक इनह्यूमन। अगर ऐसा बहुत सारे आ रहे हैं, कोई दोस्त उसका फैमिली में कुछ हुआ है, हॉस्पिटलाइज्ड हुआ है, ड्यू टू कोरोना हो सकते हैं, लेकिन हम लोग डिस्टेंस मतलब मिनिमम रिलेशनशिप भी हम लोग कभी कभी बंद कर रहे हैं। दैट इज रॉन्ग। मतलब टेंशन में ऐसा भी ना हो जाइए जहां आपका इनह्यूमन बिहेवियर भी बहुत ज्यादा आए। हम एक नेक्स्ट क्वेश्चन में आ रहे हैं। पार्थोलोद ओमकार, how we can sustain the interest of younger generation? यंगर जनरेशन का इंटरेस्ट जनरली सस्टेन नहीं रह रहा है, ये हम लोग जानते हैं। व्हाट वी हैव टू डू, सबसे पहले पे अटेंशन टू द स्ट्रेंथ एंड द लिमिटेशन ऑफ योर चाइल्ड एंड रिवर्ट देयर स्ट्रेंथ एंड स्ट्रेंथन देयर वीकनेस। बच्चे के अंदर पॉजिटिव और नेगेटिव क्वालिटी क्या क्या है आप जानते हैं, कर सकते हैं। कल हम एक एक्टिविटी जैसे बोल रहे हैं, घर में जो जो मेंबर है सब एक दूसरे के जो जो पॉजिटिव क्वालिटी है और जो जो नेगेटिव क्वालिटी है एक लिस्ट बनाओ, और शाम में बैठ के थोड़ा सा डिस्कशन होगा, जो जो पॉजिटिव क्वालिटी है उसको अप्रिशिएट करना। कभी कभी हम लोग क्या करते हैं ना, बच्चे के अंदर जो नेगेटिव, अगर वो पढ़ाई नहीं करता है ये नेगेटिव क्वालिटी है, लेकिन वो हो सकता है कि डांस बहुत अच्छा करता है, बिहेवियर में बहुत अच्छा है, लेकिन हम लोग वो सब नहीं देखते हैं। वो एक नेगेटिव क्वालिटी के ऊपर हम लोग इतना ज्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं कि बाकी पॉजिटिव क्वालिटी हम लोगों को नजर में ही नहीं आता। और नेगेटिव वाइब्स कैसे होता है ना, सारा दिन अगर आप नेगेटिव बोलेंगे ना, वो नेगेटिव वाइब्स स्प्रेड करता है, तो इसमें क्या होता है बच्चे का इंटरेस्ट भी लूज हो जाता है। अगर एक चीज नेगेटिव है बाकी 5 चीज पॉजिटिव है, उसको अप्रिशिएट कीजिए। उस अप्रिसिएशन से जो 2 चीज उसका नेगेटिव है ना, वो भी पॉजिटिव में टर्न आउट करेगा, क्योंकि नेगेटिव एंड पॉजिटिव वाइब्स का इफेक्ट होता है। बार बार अगर उसको आप बोलेंगे तू पढ़ाई नहीं करता है, तू पढ़ाई नहीं करता है, लेकिन बहुत कुछ ऐसा है जो वो करता है, उसका अप्रिसिएशन आप नहीं करते, तो दैट्स व्हाई उसका जो क्वालिटी है उस चीज को सबसे पहले आपको स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा। एडोलेसेंस में और एक होता है कि ये जो पीयर के साथ रिलेशनशिप जितना होता है, तो उसमें क्या होता है ना, हम लोग दोस्तों में भी क्रिटिसिज्म करते हैं, तेरा वो दोस्त ऐसा है, तेरा ये दोस्त ऐसा है, और बच्चे क्या होता है वायलेंट हो जाता है, आपके साथ आर्ग्यू करते हैं। क्यों ना, मेरा वो दोस्त ऐसा भी है लेकिन फिर भी वो मेरा दोस्त है, हम उसके साथ रिलेशन रखेंगे, लेकिन हम लोग बोलते हैं कि वो अच्छा नहीं लड़का है तो उसके साथ मत रिलेशन रख। इट्स बेटर टू से कि उसके अंदर ये क्वालिटी खराब है, और ये बोलने के पहले ना आपको उस दोस्त का 2 अच्छा क्वालिटी भी ढूंढना पड़ेगा। ऐसा नहीं होता कि कोई ह्यूमन बीइंग पूरा नेगेटिव कैरेक्टर है, हो सकता है आपने ऑब्जर्व नहीं किया है, लेकिन अगर वो 2 क्वालिटी अप्रिशिएट करने के बाद 3rd क्वालिटी आपने नेगेटिव बोला ना, तो शायद एडोलेसेंस पीरियड का बच्चा वो एक्सेप्ट कर लेगा, लेकिन इफ यू स्टार्ट फ्रॉम नेगेटिव थिंग्स दे विल नॉट एक्सेप्ट। तो दिस इज द थिंग कि जब भी आपको स्ट्रॉन्ग करना है, उसके अंदर का स्ट्रेंथ को और भी स्ट्रॉन्ग बनाना है, यू हैव टू अप्रिशिएट। और क्या ना, एनकरेज ओपन एंड सिंसियर कम्युनिकेशन।
अप्रिशिएट करना मतलब ऐसा भी नहीं कि सिर्फ आप ऐसे ही प्रेस कर रहे हैं, आपका जजमेंट थोड़ा प्रैक्टिकल भी होगा, क्योंकि आज के बच्चे बहुत ज्यादा प्रैक्टिकल है। तो ऐसा ही जो भी किया, हाँ हाँ बहुत अच्छा किया, दिस इज नॉट द टर्म। बहुत अच्छा किया नहीं, उसके साथ आपको थोड़ा बहुत बोलना पड़ेगा कौन सा चीज में क्या था जिसके लिए ये आपको पसंद आया। यू हैव टू गिव दैट एक्सप्लेनेशन ऑल्सो। सोचिए कि कोई ड्राइंग किए है, आपने ओवरऑल बोल दिया कि हाँ बहुत अच्छा हुआ, वो इतना ज्यादा मोटिवेट नहीं होगा। लेकिन अगर आप बोले कि बेटा बहुत अच्छा हुआ, इसका इस पोर्शन मुझे ज्यादा अच्छा लगा, तो ही विल एक्सेप्ट मोर। लेकिन हम लोग इस हिसाब से जनरली नहीं बोलते। और उस टाइम अगर कोई क्रिटिसिज्म भी है, वो भी आप उस टाइम करें कि तुम्हारा ये पोर्शन बहुत अच्छा हुआ, लेकिन अगर ये पोर्शन थोड़ा ऐसा होता ना तो ये और भी बेहतर होता। Whatever your sentence, always in a positive manner. अगर आप वही सेंटेंस को घुमा के पॉजिटिवली उसके सामने लेकर आएंगे तो वो इंटरेस्ट दिखाएगा। लेकिन जनरली हम लोग क्या करते हैं, ओवरऑल बोल देते हैं अच्छा है, ये नहीं तो ये अच्छा नहीं हुआ। ऐसे स्ट्रेट आंसर मत दीजिए। अभी जजमेंट करना है तो प्रॉपरली आपको जजमेंट करना पड़ेगा। Another thing, focus on their interest also. सबको पढ़ाई में इंटरेस्ट होगा ऐसा एक्सपेक्ट करना भी गलत है। कोई कोई बच्चा ऐसा भी होता है जिसको पढ़ाई छोड़ के दूसरा चीज में भी इंटरेस्ट है। इसी जगह से यही एडोलेसेंस से आपको भी सेटअप करना पड़ेगा उसका फ्यूचर कैरियर क्या होगा। तो उसका इंटरेस्ट लेवल देखिए, अगर उसका इंटरेस्ट हिसाब से में उसका गोल सिलेक्ट नहीं हुआ तो बाद में उसका काम में उसका इफेक्ट आएगा ही आएगा। तब वो उस काम को इतना दिल से नहीं कर पाएगा जो वो खुद की इंटरेस्ट के ऊपर कोई टॉपिक होता, उसके ऊपर अगर काम मिलता तो उसमें उसका इंटरेस्ट बहुत ज्यादा होता, तब उसको लगता नहीं कि आज बहुत काम किया, तब दिल से करता। लेकिन अभी दिल से नहीं करेगा, काम करना है इसीलिए काम करेगा। तो दोनों में फर्क होता है। जब हम लोग, फ्रैंकली स्पीकिंग मेरे साथ भी होता है, जब मेरे फील्ड के ऊपर काम होता है तो मुझे लगता नहीं है सारा दिन में चेम्बर में बैठने में कोई लगता नहीं है कि हाँ बहुत काम किया है। लेकिन अगर वो छोड़ के कोई दूसरा कोई काम दिया गया तो थोड़ा 2 घंटा 5 घंटा बाद ही लगेगा कि भाई कितना काम कर लिया आज। ये सबके साथ होता है। सो इंटरेस्ट बढ़ाना है तो सबसे पहला चीज आपको उसको प्रेस करना पड़ेगा प्रॉपरली विथ प्रॉपर जजमेंट। उसका वीकनेस को स्ट्रेंथन कीजिए, एनकरेज कीजिए सिंसियर कम्युनिकेशन। क्यों आप बोल रहे हैं वो भी उसके साथ शेयर करना जरूरी है। अनदर क्वेश्चन, from this is also the question from Pathlo Domkar, Dr. Pathlo Domkar. What are the new ways of positive psychology in dealing with crisis hours? इस बारे में हम लोग बात किए हैं, फिर भी आपको थोड़ा बताने के लिए हम बोल रहे हैं कि पॉजिटिवली अगर सोचना है तो कुछ चीज आपको दिमाग में रखना पड़ेगा कि सबसे पहले यू हैव टू लर्न हाउ टू डील विथ नेगेटिव थॉट्स। अगर थॉट्स ऐसा आया, इफ आई गेट इन्फेक्टेड आई विल श्योरली डाई, ऐसा थॉट अगर दिमाग में आया, एट द सेम टाइम आप सोचिए इज द रिकवरी रेट एज पोर एज आई थिंक। पैरेलली आपको क्रॉस करना पड़ेगा। कैसे डील करना पड़ेगा ना, नेगेटिव थॉट्स आ रहे हैं कि हमारा इन्फेक्शन होगा, हम
तो मर जाएंगे। तो एट द सेम टाइम आप सोचिए कि सच में क्या रिकवरी रेट ऐसा ही पुअर है जो हम सोच रहे हैं। ऐसा भी सोचा जा सकता है कि एवरीथिंग हैज बीन रूइंड, नथिंग विल बी एवर बी ऑल राइट। तब आप सोचिए, एम आई ओवर एस्टिमेटिंग हाउ बैड द कॉन्सिक्वेंसेस विल बी? कुछ ओवर एस्टिमेट तो नहीं कर रहे हैं। कभी कभी लगता है आई एम हेल्पलेस, हमसे और कुछ नहीं होगा। एट दैट टाइम सोचिए, am I underestimating my ability to cope? जिंदगी में ऐसा बहुत, ये कोविड-19 ही एक बहुत प्रॉब्लम, हाँ प्रॉब्लम तो ऑब्वियसली है, लेकिन आप अगर खुद की जिंदगी में सोचे ना, बहुत कुछ ऐसा स्ट्रगल आया है जो आपको फेस करना पड़े। अब तो सब मिलजुल के फिर भी हम लोग कोशिश कर रहे हैं। ऐसा सिचुएशन भी आया है जब आप अकेले भी लड़े हैं, तो वो सिचुएशन अगर आप कोप अप कर सकते हैं, व्हाई नॉट दिस? वो सिचुएशन में अगर सब कुछ सही हो सकता है तो इस सिचुएशन में भी हो सकता है, इफ यू वांट। तो पास्ट में जो जो जगह, जहां जहां प्रॉब्लम, जहां जहां स्ट्रगल हुआ था, उसको रिकलेक्ट कीजिए, उसको रिकॉल कीजिए कि उस सिचुएशन में कोई मेरा साथ नहीं था, लेकिन फिर भी हमने उस सिचुएशन को मेकअप किया था, उस सिचुएशन को क्रॉस किया था, ओवरकम किया था। तो व्हाई नॉट दिस टाइम? दिस टाइम ऑल्सो आई कैन डू। हाँ, हो सकता है कि उसके लिए कुछ मेजर्स हमको लेना पड़े, that may be possible. Excuse me, ma'am. I will interrupt once again. Ma'am, we need to wind up. And if you say, we can just have the last 5 minutes for question Okay, answers. Okay. The participants, I'm requesting the participants to unmute your audio and you can drop in your questions one by one. If you have any queries, you can ask, because this is the last 5 minutes left. Participants, kindly unmute your audio and drop in your questions one by one. Madam, does recreational interest, creation of recreational interest can train our emotions, control our emotions during the adolescence period? Obviously, sir, give some example. Like dancing, recitation. Obviously, it will help, sir. It will. Performing art like drama, playing in a drama. Sir. Obviously, it will help. It will help. Mainly it will help because it will give them a pleasure. That I have said before. That pleasure, when they will gain that pleasure, they will do it again and again. But if they will not gain that pleasure, then it's not possible that they will do it. So we have to think about all those recreational activities that they are interested, not giving by ourselves. We have to think about their choice. Okay, ma'am. There are some people who are interested in drawing, but there are some people who are interested in dancing. If you cross it, then it's not possible. Any other question? Depending on attitude. Exactly, sir. Any other question? Thank you, madam. Welcome. Any other question, or I wind up this session? Is there anyone? Ma'am, I don't think they have any more questions. Ma'am. Okay, Yes. we have someone. मैम, Yes. इस टाइम पे अपने माइंड को कंसंट्रेट कैसे रखें? माइंड को कंसंट्रेट करने के लिए हमने बोला सबसे पहले वो माइंडफुलनेस प्रैक्टिस करिए। माइंडफुलनेस के लिए मतलब जो बोले कि सारा दिन में जो भी एक्टिविटी कर रहे हैं उस टाइम उस एक्टिविटी में सबसे पहले फोकस रहना आपको सीखना पड़ेगा। मतलब एक साथ सब कुछ हो रहा है, उसमें क्या हो रहा है, माइंड डाइवर्शन बहुत ज्यादा होता है। तो कंसंट्रेशन करना है, मतलब शुरुआत में ही पढ़ाई का बुक्स देके हम किसी को बोल रहे हैं कंसंट्रेट करो, इट्स नॉट पॉसिबल। बट माइंडफुलनेस उसको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। मतलब हर कोई चीज जो काम और सारा दिन में कर रहा है, जो काम जब कर रहा है उस चीज में फोकस्ड होना बहुत जरूरी है।
शुरू में मैम वो प्रैक्टिस करना जरूरी है। इसके साथ आप मेडिटेशन भी ऐड ऑन कर सकते हैं, और अगर बच्चे हैं तो बच्चे के लिए कुछ एक्टिविटीज है जो आप घर में उसको प्रैक्टिस करा सकते हैं, कुछ गेम्स है जिसमें बहुत ज्यादा माइंड को इन्वॉल्व करना पड़ता है। Okay, ma'am. Thank you. वेलकम। एनी अदर क्वेश्चन? Ma'am, how can I identify emotional disturbance in my child who is in adolescent period? First you have to think about the symptoms, sir, कि Yeah, किस yeah, yeah. हिसाब उसका खाना सोना सारा दिन कैसा मूड रह रहे हैं, पहले ऐसा नहीं था। जनरली एडोलेसेंस में बच्चे का जिस चीज में इंटरेस्ट होता है वो सारा चीज में उसका इंटरेस्ट नहीं है, अ लिटिल बिट डिफरेंट। ये सारा सिम्टम्स आपको देखना पड़ेगा। एटलीस्ट अगर 1 महीना भी आप नोटिस कर रहे हैं, देन देयर मे बी सम इमोशनल डिस्टर्बेंस। Any certain difference? Any certain difference that is not appropriate in this age. Yeah. That is not habitual for the child. Yeah. Yeah. Thank you, ma'am. Thank you. Any other queries you can mail. This is the mail address, it's given. Right, You ma'am. can note, It's you can time note it down. wind up. So Okay. I would request all our participants to kindly note down the mail ID, that is pro@mckv.edu.in, for any further queries, any questions that comes to your mind and you want a solution from madam, please mail us at this email ID and we'll get back to you soon with the solution. And I want your suggestions also, that participants, that if you want any another topic you want to discuss, please mention that, we will ready for that. Yes, Thank you. please. Thank you. Thank you so much, ma'am. Thank you all our participants. Thank you, madam. Thank you, ma'am. Thank you. Thank you. Bye. Good night.